حضرت شاہ ہاشم پیر دستگیر حسینی علوی قدس سرہ العزیز، آپ شہر بیجاپور کے برگزیدہ اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ حضرت شاہ وجی الدین علوی گجراتی قدس سرہ العزیز کے بھتیجے ہیں۔ سلطان ابراہیم عادل شاہ جگت گرو کے زمانے میں سرزمین بیجاپور میں آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ کچھ عرصہ زہرہ پور میں مقیم تھے، بعد ازاں شہر کے اندر قدم رنزا فرمائے۔ آپ کے ارشاد و تلقین کے طفیل ہزارہا بندگان خدا باطنی فیض پا کر خدا رسیدہ بن گئے۔ شاہ وجی الدین کی رحلت کے وقت آپ کی عمر شریف 14 سال کی تھی۔ آپ کے والد ماجد حضرت شاہ برہان الدین حسین علوی سے آپ کو بیعت و ارادت حاصل ہوئی، جن کی صحبت میں آپ سخت ریاضتیں اور مجاہدے کرتے ہوئے راہ سلوک میں کامل و اکمل بن گئے۔ والد بزرگوار کی رحلت کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق شاہ وجی الدین علوی قدس سرہ العزیز کی وفات کے بعد آپ کے فرزند حضرت شاہ عبداللہ قدس سرہ العزیز کی خدمت اقدس میں ایک مدت دراز تک آپ کی حضوری اور صحبت میں رہ کر خلافت اور اذکار و اشفال کی اجازت اور نعمت ظاہری و باطنی حاصل کر کے سلوک کے تمام مراحل و مراتب طے کر کے تمام دارالورا کے کشف میں جو راز و نیازات تھے ان سے واقفیت کامل حاصل کر لیے۔ ابراہیم عادل شاہ اور ان کا فرزند محمد عادل شاہ حضرت کی جنابت میں نہایت اعتقاد رکھتے تھے اور آپ کی خدمت گزاری اور پاسداری کرتے، اور اپنے مشکل اور آفات کے زمانے میں آپ سے رجوع ہو کر اپنے مشکلات دور کر لیتے تھے اور آپ کی توجہ سے اپنے حاجات برلاتے تھے۔ آپ کے حضور میں شاہ و گدا یکساں نظر آتے ہیں، جو کچھ نظر و نیاز آتے فقیروں میں تقسیم ہو جاتی۔ یہ جو دوستی کا سلسلہ آپ کی عمر کی 16 سال سے ہی شروع تھا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے کہ فقیر کے ہاں رات تک ایک بھی درہم باقی رہ جائے تو اسے گرم کر کے فقیر کے بدن پر داغ دیں۔ اس بات جیسا حضرت کا فرمان ہے کہ ہاشم جی سونی بات جن رکھے باسی بات اس کا جاوے ہاتھے ہاتھ۔ نقل ہے کہ ایک وقت فراموشی سے 1 دینار حسیر کے نیچے رہ گئی تھی، دوسرے روز نظر آئی تو آپ نے اپنے عہد و قول کے مطابق اس کو گرم کر کے اپنے بدن شریف پر داغ دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سلوک کا طریقہ 16 سال کی عمر میں اختیار کیا، نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتا رہا، روبرو جو بھی آ جاتا کھا لیتا، کبھی نہ کہا کہ کچا ہے یا پکا ہے، پھیکا ہے یا تھیکا ہے۔ حضرت نے 2 مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت کی۔ اس میں ایک مرتبہ اپنے جد امجد جناب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حاضر خدمت ہو کر ظاہری اور باطنی نعمتوں اور فیضوں سے سرفراز ہو گئے۔ رسول کریم ہمیشہ بشارتیں اور عنایتیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے ملفوظات میں مذکورہ ہے کہ حضرت شاہ ہاشم قدس سرہ فرماتے تھے کہ ایک معاملہ یوں ہوا کہ میں ہوشیار ہوں کہ اپنے گھر سے زہرہ پور کی مسجد کے صحن میں آیا، دیکھا تو ممبر کے پاس محراب کے روبرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ کے ساتھ کھڑے قبلہ رخ ہو کر کچھ مسائل بیان فرما رہے ہیں۔ اسی اثنا میں یہ فقیر جلدی جلدی مسجد کے اندر آیا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہاشم آئے ہیں۔ آپ نے اپنا چہرہ انوار فقیر کی جانب کیا۔ فقیر کلمہ کی انگلی زمین پر رکھ تسلیمات بجا لاتے ہوئے دونوں دست مبارک زانوں پر رکھ کر با ادب بیٹھ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیر کو خطابات اور دعاؤں سے نوازا۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر قدس سرہ کی یہ عادت تھی کہ وہ کبھی مست ہاتھی کے روبرو سے نہیں ہٹتے تھے، اور اس حیوان محیب سے آپ کو بارہا مقابلے کا اتفاق ہوتا رہا ہے، اور مست ہاتھی سرنگوں ہو کر راستے سے چلا جاتا تھا۔ ایک روز حضرت سے ایک مرید نے عرض کیا حضور آپ ہاتھی، شیر اور زہریلے سانپوں کے روبرو سے منہ نہیں موڑتے، یہ شجاعت ہے یا اسماء الہی کی برکت ہے؟ آپ نے فرمایا یہ شجاعت ہے نہ اسماء الہی کی برکت۔ میرے والد بزرگوار فرماتے ہیں کہ اے فرزند، اگر حضوری حق حاصل ہے تو وحشی جانوروں سے دل میں کسی طرح کی وحشت اور فکر نہ ہونا چاہیے۔ اگر کچھ وحشت کا احساس بھی ہوتا تو سمجھ لے کہ تو اپنے مرتبے سے نیچے گر گیا ہے، اس کا علاج کرنا ہے تاکہ پھر سے اس مرتبے کو پہنچے۔
नकल है कि सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह जगत गुरु के जमाने में कहत साली हुई। लोग परेशान हाल भूखे प्यासे आपके हुजूर आकर दुआ की दरख्वास्त की। आपने तवज्जो फरमाई और दुआ की कि आए अल्लाह बहुरमत जद अमजद ऐसी बारिश बरसा कि हर चीज जिंदा सर सब्ज व शादाब हो जाए। हजरत की जुबान मुबारक से इन कलमात का निकलना ही था कि आसमान पर चारों तरफ बर्फ छा गया और ऐसा बरसा कि हर तरफ नदियां नाले बहने लगी और खेतियां दरख्त सरसब्ज हो गए। नकल है कि एक रोज हजरत हाशिम पीर दस्तगीर क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ तालिबों की महफिल में सरगर्म दर्स व तदरीस व इरशादात में मसरूफ थे। असर का वक्त निकला जा रहा था। हाजरीन के दिल में ख्याल आने लगा कि हजरत क्यों कर इस तरफ ख्याल नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी में पूछने की हिम्मत न हुई। आखिरकार सूरज गुरूब होने के आखिरी वक्त हजरत मजलिस से उठे, ताजा वजू किया और सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे कि आफताब फिर निकल आया। आपने अपने मुरीदों और अहले मजलिस के साथ नमाज असर अदा की। गर्ज एक घड़ी तक आफताब बुलंद रहा। नकल है कि एक शख्स हाजी जाकिर नामी बुजुर्गों की खिदमत और उर्सों वगैरह में नात व दीगर मनकबत वगैरह पढ़ता था। उसकी आवाज में कुछ खराश थी। लोग उसको सुनकर उसका मजाक उड़ाते थे। गुलकार हजरत के करामात सुनकर आपकी खिदमत में मुअद्दबाना गुजारिश की कि उसकी आवाज में मिठास पैदा हो। हाशिम पीर दस्तगीर क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ ने उसे अपना दस्तार खास और 2 बूटी की चादर अता की और फरमाया कि जा, अब तुझे लहने और दाऊदी अता हो गई है। इसके बाद जब भी ये गवैया गाने लगता तो उसकी खुश अलहानी से लोग अपना दिल हार बैठते और जंगली चरिंदों परिंदों को भी अपने हुस्न आवाज के दाम में फंसाता था। एक खादिम अपने तादम हयात इसी तरह लहने दाऊदी से गाता रहा। नकल है कि हजरत जिस वक्त बीजापुर आ रहे थे, रास्ते में एक ईसाई बूढ़ा मिला और हजरत से कहने लगा कि मैं बड़ा कीमियागर हूँ, आपको इस इल्म से नवाजना चाहता हूँ, यही आपकी खिदमत में मेरा हदिया समझिए। हजरत हाशिम पीर दस्तगीर ने उससे कहा कि मैं फकीर आदमी हूँ, मुझे सोने से क्या मतलब, अगर तुझे सोना चाहिए तो पत्थरों का ढेर जमा कर। हस्बे इरशाद इस बूढ़े ने एक बड़ा पत्थरों का ढेर जमा किया। आपने इस ढेर पर अपनी नजर कीमियाई डाली तो ढेर सोने का बन गया और उस बूढ़े से कहा कि तुझे जिस कदर चाहिए ले जा। हजरत की इस करामत से वो बहुत मुतासिर हुआ। कदमबोस होकर अर्ज करने लगा कि आपका खादिम और मुरीद बना ले। आपने उसे अपने जुमरे मुरीदैन में शामिल करके हिदायत जिक्र व अज़कार से नवाजा। नकल है कि एक रोज आपका एक मुरीद खास आपके हुजूर हाजिर होकर अर्ज किया कि खादिम हज बैतुल्लाह का अज़्म किया है, हुजूर वाला की इजाजत चाहता हूँ। हाशिम पीर दस्तगीर ने अपना हाथ लंबा किया और मुरीद से फरमाया कि इधर नजर कर। मुरीद ये देख कर हैरान रह गया कि उसके सामने काबा है। आपने फरमाया कि तवाफ कर लो। हस्बे इरशाद तवाफ काबा से मुशर्रफ हुआ। फिर थोड़े वक्त के बाद मुरीद से फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ताला ने तुमको यही तवाफ से सरफराज किया है। खादिम ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ फजल इलाही और आपका सदका है। नकल है कि सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह को हौल की शिकायत थी, वो भी इस दर्जा कि जब अबर आता, बिजली चमकती और बादल गरजता तो बादशाह को धक दर्जा बेकरारी और बेचैनी पैदा होती। तमाम हकीम और दरबारी तबीबों से इलाज न हो सका। बादशाह हर वक्त हौल से बेकरार रहता था। आखिरकार शाह हाशिम पीर दस्तगीर क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ की खिदमत में अर्ज करवाया कि इस बला से निजात हो। हजरत ने तवज्जो फरमाई और उसी दिन से बादशाह का हौल जाता रहा। बादशाह की बेदारी के वक्त अबर, बादल, बिजली खामोश रहते और जब बादशाह गहरी नींद में सोया होता तो ये सब अपना अपना काम कर लेते। गर्ज बादशाह की आखिरी सांस तक यही मामला चलता रहा। नकल है कि उस जमाने में 2 मशहूर और मारूफ चोर थे। वो कभी फौज और दरबारी अहलकारों के हाथ न मिलते और दिन इत्तेफाकन कोतवाल ने उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें सजा देना चाहा तो उन्होंने कोतवाल से कहा कि ये हमारी खता नहीं थी, हजरत हाशिम पीर ने हमें इस काम के लिए भेजा है। कोतवाल हजरत का नाम सुनकर हैरान रह गया और उन्हें बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह के पूछने पर भी दोनों चोर हजरत का नाम पेश करने लगे।
बादशाह और तमाम दरबारियों ने समझा कि हाशिम पीर दस्तगीर के तुफैल में ये लोग झूठ बोलकर बचना चाहते हैं। कई मर्तबा पूछने पर भी वो हुजूर के नाम को अपनी निजात और मुखलिसी का वसीला बनाकर वही बात दोहराते रहे। आखिरकार बादशाह ने एक मुलाजिम को दरियाफत हाल जानने हजरत के पास रवाना किया। हजरत ने जब ये बात सुनी तो कहा कि हाँ, हाशिम ही ने उन्हें चोरी का हुक्म दिया था। मुलाजिम बादशाह से आकर कैफियत बयान किया। बादशाह को मालूम था कि आप क्या हैं, फिर भी दोबारा मुलाजिम को भेजकर दोनों चोरों का हुलिया, शक्ल व सूरत मालूम करना चाहा तो हजरत ने हूबहू बयान किया। अब बादशाह हजरत के फरमान पर उन्हें रिहा कर दिया। दोनों चोर फौरन हजरत की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अपनी खताओं की माफी चाही और आपके मुरीदों के जुमरे में शामिल हो गए। हजरत ने उन्हें गुनाहों से दूर रहने की ताकीद की। एक चोर ने कहा कि शराब खोरी और जिनाकारी मुझसे छूटना नामुमकिन है, लिहाजा मुझे रोज क़यामत आप बख्शिश की सिफारिश फरमाएं। आपने कहा ठीक है, अलबत्ता मेरी मौजूदगी में ये गुनाह मत करना। वो चोर बड़ा खुश हुआ और दूसरे दिन शराब पीने शराब खाने गया तो आप वहां मौजूद थे। वहां से निकलकर कुंजन के घर गया, वहां भी मुर्शिद की सूरत देखकर शर्मिंदा हुआ और इन गुनाहों से छुटकारा पाया। नकल है कि सुल्तान आदिल शाह सख्त बीमार हो गया, किसी तबीब और हकीम से इलाज न हो सका। आखिर हजरत से इल्तमास किया कि इस बीमारी से खुलासी पाए। हजरत ने तवज्जो की और कहा कि अब तेरी उम्र तबाई खत्म हो चुकी है। चूँकि तेरे वालिद इब्राहिम आदिल शाह ने फकीर पर बड़ा एहसान किया है, अब बदला चुकाना है, लिहाजा फकीर अपनी बकिया उम्र के 10 साल बख्श देता है। उसी दिन से बादशाह सेहतमंद होता गया और हुजूर बीमार होते गए। आखिरकार 3 दिन के बाद जुमा के दिन रमजानुल मुबारक में सन 1056 हिजरी में वासिले हक हुए। आपके जनाजे में उजरा, उमरा, फुकरा व सादात, मशाइखीन व फुजला गर्ज बीजापुर के कुल खास व आम शरीके जनाजा थे। चाहते थे कि जनाजे को हाथ लगाएं, लेकिन जनाजा मुअल्लक था। आपके मुर्कद मुनव्वर पर एक खुशनुमा गुम्मद है। हर साल उर्स मुबारक के मौके पर अतराफ व अकनाफ से मुरीदाइन व मोतिकदैन का हुजूम जमा रहता है। आज भी हजरत की दरगाह से कई लोग अपनी मुरादें पूरी कर लेते हैं और आपका फैज़ व करम हर कस व नाकस के लिए जारी व सारी है। आप जैसे बुजुर्गों पर खाक बीजापुर को नाज